المقبول والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فرجم جنکر درود پاک اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سرکار اعلیٰ حضرت سنگ البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خواجہ صاحب بریلوی نے کیا ہی خود لکھا ہے یا حبیب یا رسول اللہ صبح طیبہ میری بنتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے گال صدقہ نور کا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور کسی شاعر نے کیا ہی خود لکھا ہے حضرت آدم تھے مٹی وہ پانی کے مابین حضرت آدم ابھی تھے مٹی وہ پانی کے بین اس وقت بھی جلوہ گر تھا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم بشارت عیسیٰ اور حضرت سیدہ آمنہ کا راز دلارا دعائے ابراہیم بشارت عیسیٰ اور سیدہ آمنہ کا راز دلارا جس محلات شام نظر آ گئی وہ نور مصطفیٰ جنت کے دروازوں پر لکھا پایا جس کا نام حضرت آدم نے جنت کے دروازے پر لکھا پایا جس کا نام حضرت آدم نے کتنا پیارا ہے نام نامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی خلیل اللہ کوئی ذبیح اللہ اور کوئی کلیم اللہ کوئی خلیل اللہ کوئی ذبیح اللہ اور کوئی کلیم اللہ ان سب سے افضل ہے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل نے کنگال دنیا کے مشرق و مغرب کو حضرت جبریل نے کنگال کر دنیا کے مشرق و مغرب کو مگر نہیں پایا ایسا شخص جیسے ہیں محمد مصطفیٰ اور کسی شاعر نے کیا ہے خود لکھا ہے آپ آئے تو زمانے کو اجالا کر دیا آپ آئے تو زمانے کو اجالا کر دیا ایک نگاہ ناز نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا اور الفت آقا میں ہم نے دل دیوانہ کر دیا الفت آقا میں ہم نے دل دیوانہ کر دیا تیری مدحت نے مجھے دنیا میں شہرا کر دیا اور پوچھتا کوئی نہ تھا مجھ بے ہنر کو جب سہا پوچھتا کوئی نہ تھا مجھ بے ہنر کو جب سہا آپ کی نظر کرم نے قد کو اونچا کر دیا آپ کی نظر کرم نے قد کو اونچا کر دیا اور میرے خواجہ ہند کی راجا کی عالی شان ہے میرے خواجہ ہند کی راجا کی عالی شان ہے ایک پیالے میں انا ساگر حوالہ کر دیا اور مکہ سے ہجرت مکہ سے طیبہ کی ہجرت شان و شوکت لاجواب مکہ سے طیبہ کی ہجرت شان و شوکت لاجواب آپ کی آمد نے یثرب کو مدینہ کر دیا آپ کی آمد نے یثرب کو مدینہ کر دیا اور پیاسے جتنے بدر کے میدان میں اصحاب تھے پیاسے جتنے بدر کے میدان میں اصحاب تھے آپ نے انگلی سے اپنا جاری چشمہ کر دیا اور کسی شاعر نے کیا ہے خود لکھا ہے مناؤ جشن خوشی مناؤ صدا فرشتے لگا رہے ہیں مناؤ جشن خوشی مناؤ صدا فرشتے لگا رہے ہیں ہے آج کا دن بڑا مقدس خدا کے محبوب آ رہے ہیں اور وہاں بھی ان کو
ملے گی راحت یہاں بھی آرام پا رہے ہیں، وہاں بھی ان کو ملے گی راحت یہاں بھی آرام پا رہے ہیں۔ جن کو نامی نبی سے نسبت وہ رحمتوں میں نہا رہے ہیں، اور چٹائی ٹوٹی ہے ان کا بستر بندھا ہے ان کی شکم پہ پتھر، چٹائی ٹوٹی ہے ان کا بستر بندھا ہے ان کی شکم پہ پتھر، زمین اور آسماں فہم قصیدہ جن کا سنا رہے ہیں، اور ہے تجھی سے میری عرضی بیٹی نماز ہے سب پہ فرض بیٹی، ہے تجھ سے میری عرض بیٹی نماز ہے سب پہ فرض بیٹی۔ رسول اکرم بڑے ادب سے یہ فاطمہ کو بتا رہے ہیں، رسول اکرم بڑے ادب سے یہ فاطمہ کو بتا رہے ہیں، اور انہیں یہ دولت نصیب ہوگی نبی کی قربت نصیب ہوگی، انہیں یہ دولت نصیب ہوگی نبی کی قربت نصیب ہوگی۔ کرم خدا کا ہے خاص ان پر مدینہ جو لوگ جا رہے ہیں، اور یہ دھوم گھر گھر مچی ہے اندھیروں کی موت لازمی ہے، یہ دھوم گھر گھر مچی ہے اندھیروں کی موت لازمی ہے۔ نبی مرسل جہاں میں آ کر چراغ وحدت جلا رہے ہیں، اور کسی شاعر نے کیا ہے خود لکھا ہے، یا حبیبی یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ کون کہتا ہے کہ وہ دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، اور میرے دل میں کبھی نہ غم آئے کیونکہ دل میں حضور رہتے۔ پر جھم جھم کر درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وما قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے تحقیق کہ اللہ کی جانب سے آیا ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد جناب محمد عربی روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید مراد ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتاتا چلوں۔ پتہ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت ہی بابرکت شان ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز کیسے دنیا میں ظاہر ہوتا تھا، اور حضرت آمنہ سے کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ پتہ ہے میرے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں آیا، جب مصطفیٰ کا نور حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں جلوہ ہوا۔ پتہ ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال میرے شکم میں آیا نا تو عام عورتوں کی طرح مجھے تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی، عام عورتوں کی طرح میرے شکم میں جو ہے درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال محمد میرے شکم میں آ گیا، اور یہاں تک کہ جو ہے مصطفیٰ کی دنیا میں آمد کا وقت قریب آیا، اس وقت مجھے تکلیف ہوئی، باقی اور مہینوں میں مجھے ذرہ برابر احساس ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال میرے شکم اطہر میں آیا، میرے پیٹ میں آیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال میرے شکم میں آیا نا، اس کے بعد میرے شوہر حضرت عبداللہ جو ہے تجارت کی غرض سے ملک شام چلے گئے۔ حضرت آمنہ کہاں رہتی تھی؟ مکے کی سرزمین پہ۔ میرے آقا کی پیدائش کہاں ہو رہی ہے؟ مکے کی دھرتی پہ۔ اللہ اکبر۔ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا شوہر عبداللہ جو ہے سفر کے دن تجارت کی غرض سے ملک شام چلے گئے، اور ملک شام گئے نا تو حضرت عبداللہ دوبارہ واپس نہیں لوٹے۔ پتہ ہے میرے دوستو، حضرت عبداللہ ملک شام گئے، وہاں جانے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہاں جب طبیعت خراب ہوئی
वापस आकर आपका इंतकाल मदीने की सरजमी पे हो गया। जब थोड़ी दिन के बाद हजरत आमना अब्दुल मुत्तलिब के कानों तक ये बात पहुंचती है कि ऐसा है अब अब्दुल्ला दुनिया में नहीं रहे, अब्दुल्ला का दुनिया से पर्दा कर गए, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा अगर मैं अपनी बहू को बता देता हूँ, अब्दुल्ला की जौजा को बता देता हूँ, अब्दुल्ला की औरत को बता देता हूँ, हो सकता है कि अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त न कर सके, सदमा को बर्दाश्त न कर सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे के मौत के ऊपर पर्दा डाल दिया। लेकिन पता है मेरे दोस्तों, हज़रत आमना फरमाती है, पैगंबर की माँ फरमाती है कि जब मुझे पता चला उस वक्त जो है मेरे लाल को मेरे शिकम में आए हुए 6 महीने का अरसा गुजर चुका था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी दुनिया के अंदर जलवा अफरोज नहीं हुए, अभी माँ के शिकम में है, 6 महीने का अरसा ही गुजरा था। हज़रत आमना को पता चल गया कि अब मेरे सरताज का साया मेरे सर से हो चुका है, अब मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। अल्लाहु अकबर। पूछो उस औरत से जिसका शौहर दुनिया से चला जाए, जिसके शौहर का पर्दा उसके सर से उठ जाए, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसके दिल पे क्या बीतती है, उसके दिल पे क्या गुजरता है। हज़रत आमना जो है सब्र का पत्थर अपने सीने पे रखा, रखने के बाद अल्लाहु अकबर मेरे दोस्तों, जब हज़रत आमना को पता चल गया ना कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, पता है मेरे दोस्तों उस वक्त मक्के का हाल बहुत ही बुरा था, क्योंकि जिस औरत का शौहर मर जाए ना वो अच्छा कपड़ा भी नहीं पहन सकती थी, अच्छी खुशबू भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, अच्छी तरीके से अपने बाल को भी संवार नहीं सकती थी, अच्छी तरीके से जो है जिंदगी बसर नहीं कर पाती थी। अल्लाहु अकबर। क्योंकि उस वक्त का इतना बुरा माहौल था, जिस औरत का शौहर मर जाए ना उसे मनहूस समझा जाता था, उसको जो है लोग नहुसत भरी निगाहों से देखा करते थे, हकारत की नजरों से देखा करते थे। पता है मेरे दोस्तों, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है पानी लेने के लिए आप जो है मछली लेकर जाती थी, बाल्टी लेके जाया करती थी। कुएं के पास जब जाती ना, आमना फरमाती है कि जब मैं घर से निकलती तो रास्ते के पेड़ पत्ते जो है सब मुझ पे सलातो सलाम पेश किया करते थे और कहते थे ये आमना परेशान मत हो, तेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है, जो तेरे शिकम में जो बच्चा परवरिश पा रहा है वो बच्चा आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो बच्चा तमाम नबियों का सरदार बन के दुनिया में तशरीफ लाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, जब आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुएं के पास जाती और पानी लेने के लिए कुएं के करीब जैसे ही पहुंचती ना, मक्के की औरत जो पहले जाती थी पानी लेने के लिए, उस वक्त जो है पारी पारी से लोग पानी दिया करते थे, बारी लगा दिया करते थे कि जो पहले आएगा वो कुआं के पास जो है पहले पहुंचेगा, वही पानी सबसे पहले लेगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अल्लाहु अकबर। आमना फरमाती है कि जब मैं जाती थी कुएं के पास ना, जितनी मक्के की औरतें होती थी, बड़े बड़े अमीर घराने की औरतें रहती थी, लेकिन सब जैसे ही मैं पहुंचती थी ना, सब मेरे लिए रास्ता खाली कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह। और आमना फरमाती है कि मक्के की औरत जो है बाल्टी में रस्सी डालकर कुएं के नीचे से पानी निकालती थी, कुआं के अंदर जो है तह में पानी रहता था। आमना फरमाती है कि जब मैं कुएं के करीब पहुंचती थी और पानी लेना चाहती थी तो जैसे ही मैं बाल्टी को कुएं के करीब करती थी तो कुएं के अंदर पानी रहता था, लेकिन जैसे ही बाल्टी को मैं कुएं के अंदर दाखिल करती थी कुएं के तह का पानी जो है ऊपर आ जाया करता था। सुभान अल्लाह। पता मेरे दोस्तों, आमना फरमाती है पानी ले लिया करती थी और लेने के बाद सबसे आखिर में जाती थी, लेकिन सबसे पहले पानी लेकर अपने घर पहुंचती थी। लेकिन जब पानी लेके वापस लौटती थी ना, रास्ते के पेड़ पत्ते जो है सब कहते हुए नजर आते थे, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां आमना। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ऐसी बात हुई ना, आप जिंदगी के लम्हात को गुजारते रहे, लेकिन अरब के दस्तूर के मुताबिक हज़रत आमना के जिसमें अंदर से खुशबू आती थी, आपके जिसमें अंदर से खुशबू छूट पड़ती थी, आपका जिस्म जो है मुअत्तर था, मुनव्वर था, महक रहा था। मक्के की औरतों में आपस में जो है बात ये होना शुरू हो गई। ऐसा है देखो ना, आमना के शोहर का इंतकाल हो गया है, लेकिन आमना अभी खुशबू इस्तेमाल करना बंद नहीं थी, क्योंकि ये मक्के के दस्तूर के खिलाफ जो है आमना जिंदगी के लम्हात को गुजारती है, जिंदगी के साथों को गुजारती है। ये अरब के दस्तूर के खिलाफ जो है आमना अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारती है, जिंदगी के वक्तों को गुजारती है। आपस में जब औरतों ने इस तरीके की बात शुरू कर दी, यहाँ तक कि ये बात जो है शिकायत के तौर पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कान तक पहुंची। अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने कहा था, मक्के की औरतों ने कहा था, ये अब्दुल मुत्तलिब आपकी बहू जो है बेवा हो चुकी है, आपकी बहू जो है
अपने आदमी की तरफ से जो है बेसहारा हो चुकी है, उनके सर के ऊपर से आदमी का साया उठ चुका है, फिर भी तेरी बहू जो है खुशबू इस्तेमाल करती है, अच्छा से अच्छा कपड़ा इस्तेमाल करती है, बाल संवार के चला करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अब्दुल मुत्तलिब जो खाना काबा के मुतवल्ली थे, जो बानिए खाना काबा थे, अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ा नाम था अब्दुल मुत्तलिब का, लेकिन जैसे ही लोगों ने इस तरह की शिकायत की, औरतों ने बताया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सर जो है झुका। जैसे ही सर झुकाना, अब्दुल मुत्तलिब अपनी बीवी को करीब किया। करीब करने के बाद कहता है, मेरी जोजा सुनो सुनो, आज बात ये है, आज तक कभी किसी ने अब्दुल मुत्तलिब का सर झुकाने की बात न की। आज लोगों ने, आज मक्के की औरतों ने ऐसी ऐसी बात कह दी मुझे कि आमना की वजह से मेरा सर झुक गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल मुत्तलिब खुद अपनी बहू के पास नहीं गए, बल्कि अपनी औरत से जो है आमना की शिकायत की और कहा, जाकर अपनी बहू आमना से कह दो कि इस तरह से खुशबू इस्तेमाल न करे, नया कपड़ा ना पहने, बाल ना सवारे। अल्लाह अकबर कबीरा। आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जोजा जाती है, औरत जाती है और जाने के बाद कहती है, ये आमना, मक्के की औरतों ने तेरे बारे में शिकायत की है, तेरे बारे में जो है मक्के की औरतों ने शिकवा की है, बता क्या बात है, क्यों तुम खुशबू इस्तेमाल करती हो, क्यों अच्छा से अच्छा कपड़ा लिबास पहनती हो, अच्छा से अच्छा लिबास जो है जेब तन करती हो, बाल सवारती हो। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था, ये मेरी सासू माँ, आप मेरे करीब आइए। करीब आने के बाद हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हाथ को दीवार पे मारा था और दीवार पे जैसे ही मारा, थोड़ा सा मिट्टी हाथ में लिया और लेने के बाद जो है उस मिट्टी को हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जोजा, अब्दुल मुत्तलिब की औरत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की दादी के हाथ में दिया और कहा, अम्मी जान, आप मिट्टी को सूंघ के देखिए, मिट्टी को महसूस करके देखिए, मिट्टी के खुशबू का एहसास कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आमना के हाथ की मिट्टी जो है जैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी के हाथ में पहुंची है, पहुंचने के बाद जो है अब्दुल मुत्तलिब की औरत मुस्तफा की दादी ने जैसे ही मिट्टी को सूंघा था, वो मिट्टी इतना मुअत्तर था, इतना खुशबूदार था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की औरत से हजरत आमना ने कहा था, ए माँ सुन ले, ए माँ कान खोल कर सुन ले, मैं जो है मक्के के दस्तूर के मुताबिक जिंदगी के लम्हात को नहीं गुजारती, बल्कि जब से आपके बेटे का लाल मेरे शिकम में आया है, जब से आपके बेटे का लाल मेरे शिकम में जलवा अफरोज हुआ है, ए माँ सुनो सुनो, जिस गली से आमना का गुजर होता है वो गली मुअत्तर हो जाता है। आमना का गुजर अगर बाजार से हो तो बाजार मुअत्तर हो जाए, आमना का गुजर अगर मक्के के किसी वादी से हो वो वादी महकने लगे, आमना का गुजर अगर किसी गली से हो जाए वो गली मुअत्तर हो जाया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जोजा ने जब मिट्टी को महसूस किया, देखो मिट्टी इतनी खुशबूदार है, अल्लाह अकबर, ले जाकर अब्दुल मुत्तलिब को दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने भी मिट्टी की खुशबू को एहसास किया, सूंघा, कहा, बेटी ऐसा है, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था, बच्चे वाले जो कह रहे हैं ना सब गलत कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ फरमाती है कि 6 महीने का मेरा लाल शिकम में था, उनके बाप का इंतकाल हो गया और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त करीब आया ना, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि और औरतों की तरह मुझे तकलीफ जो है 9 महीने तक बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि जब पैदाइश का वक्त करीब आया ना, आमना फरमाती है कि उस वक्त जो है मुझे दर्द से हुआ, उस वक्त जो है बच्चे की पैदाइश के बाद जिस तरह तकलीफ होती है ना, उस तरह मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई और जब तकलीफ हुई ना तो मैं जो है रब तबारक व तआला की बारगाह में फरियाद की, दुआ की, हे मेरे परवरदिगार, मैं तो अकेली हूँ, मैं तो अकेली हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा की आमद के वक्त जो है हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जो है आम औरतों को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते कहते थे, हे मेरे परवरदिगार, आज तेरे महबूब की दुनिया में जलवागरी हो रही है, आज तेरा हबीब दुनिया में आ रहा है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जलवागरी हो रही है, हे मेरे परवरदिगार, आम औरतों के यहाँ जब बच्चे की पैदाइश होती है ना, आम औरतों के यहाँ जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो उस वक्त जो है दाया की जरूरत पड़ती है, औरतों की जरूरत पड़ती है, हे मेरे परवरदिगार, आज तेरे महबूब की जलवागरी हो रही है, वहाँ औरत कौन जाएगी, वहाँ कौन कौन सी औरत जाएगी। तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, हे इमामुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन इधर आओ। जिब्रील ने कहा, हुक्म हो रब्बे जले,
लगे। रब ने कहा चले जाओ, आसिया को आवाज दो, हजरत हव्वा को आवाज दो और हजरत मरियम को आवाज दो। ये तीन औरतें ऐसे हैं जो बहुत मुअज्जब औरत है, बहुत ही पाक दामन औरत है, जन्नती औरत है। फिर जिब्रील ने कहा था ये मेरे परवरदिगार, आसिया को इंतकाल किए हुए काफी अरसा गुजर गया, हजरत हव्वा को दुनिया से पर्दा किए हुए काफी दिन गुजर गया, हजरत मरियम को पर्दा किए हुए काफी दिन गुजर गया, हजरत हाजरा को दुनिया से पर्दा किए हुए काफी दिन गुजर गया। तो रब ने कहा था ये जिब्राइल ऐसा है, आसिया को आवाज देना तेरा काम होगा, आसिया को जिंदा करना खाली के काबा का काम होगा, हव्वा को आवाज देना जिब्राइल तेरा काम होगा, जिंदा कर देना खाली के अकबर का काम होगा, हजरत मरियम को आवाज देना जिब्राइल तेरा काम होगा, जिंदा कर देना खाली के काबा का काम होगा, हाजरा को आवाज देना तेरा काम होगा, जिंदा कर देना खाली के काबा का काम होगा। पता मेरे दोस्तों, जिब्रील गए, सबको आवाज लगाई, सबको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक जिंदा कर दिया। आलम तसव्वुर में मैंने कहा ये मेरे परवरदिगार तेरे महबूब की आमद हो रही थी, ये चाही औरत को तूने इंतखाब क्यों किया, क्यों चुना, क्यों छांटा? बहुत सारी औरतें थी जो दुनिया से पर्दा कर गई, आप किसी और को चुन लेते, लेकिन चाही औरत को आपने मेरे परवरदिगार तुमने क्यों चुना? तो रब की रहमतों ने जवाब दिया ये मेरे बंदे सुनो सुनो, मेरे महबूब की आमद हो रही है और जिस जगह मेरा महबूब जलवा अफरोज हो रहा है, जिस जगह मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है वो जगह भी पाक है, उनकी माँ आमना भी पाक है और मेरा महबूब भी पाक है। और जहाँ मेरे महबूब की विलादत हो रही है, जहाँ मेरे नबी की विलादत हो रही है, जहाँ मेरा नबी तशरीफ ला रहा है वो जगह भी पाक है। और दुनिया के बच्चों के लिए, दुनिया की औरतों के लिए, आम औरतें जो है दाया का काम करती है और अब फरमाता है कि मेरे महबूब भी पाक है और मेरे महबूब के लिए जो दाया इंतखाब किया जाएगा वो दाया भी पाक होगी, वो दाया जन्नती होगी। रब ने कहा था मैंने 4 औरतों का इंतखाब किया था ताकि 4 औरत जो है वो चारों जन्नती है और जिस जगह मेरा महबूब आ रहा है वो जगह भी पाक है, मेरा महबूब भी पाक है और मेरे महबूब की माँ आमना भी पाक व साफ है। सुभान अल्लाह। जब चारों औरत कद कामत वाली आई ना, आमना फरमाती है कि मैंने चारों से पूछा आप है कौन? तो एक ने कहा बेटी परेशान मत हो, बल्कि मैं जो है तमाम इंसानों की माँ हजरत हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा मैं आसिया हूँ, तीसरी ने कहा मैं मरियम हूँ ईसा की माँ, चौथी ने कहा मैं हाजरा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 4 दाया आई और आने के बाद मुस्तफा की आमद हो रही है। यही तक के महदूद नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमां के जितने तारे थे न तारे सबको भेज दिया हजरत आमना के घर। सुभान अल्लाह। और जितने आसमां के तारे थे सब आए और आने के बाद जो है आने के बाद हजरत आमना के घर में जगमग 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 करते हुए नजर आ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आलम तसव्वुर में मैंने कहा था कि आसमां के तारों तुम क्यों आए हो? तो आसमां के तारे ने तो कहा था हे बंदे अल्लाह के सुनो सुनो, मैं खुद नहीं आया बल्कि खालिक के काबा ने मुझे भेजा है। सुभान अल्लाह। और पता है मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने आसमां के तमाम तारे को क्यों भेजा था? इसलिए भेजा था कि आम इंसान के यहाँ जब बच्चों की पैदाइश होती है, आम इंसानों के यहाँ लड़कों की पैदाइश होती है, लड़कियों की पैदाइश होती है, तो इंसान जो है अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी में मिठाइयाँ बांटा करता है, घर को मुनव्वर करता है, रिश्तेदार को बुलाकर घर में दावत कराता है। और जिस वक्त मेरा नबी दुनिया में तशरीफ ला रहा था उस वक्त जो है मुस्तफा के घर में कोई चरागा करने वाला नहीं था, मुस्तफा के घर में कोई रोशनी करने वाला नहीं था, मुस्तफा के घर में कोई जो है लाइट का इंतजाम करने वाला नहीं था, कुमकुमे लगाने वाला नहीं था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमां के तमाम तारों को भेज दिया था। और मैंने कहा था ये तारे तू तो मुस्तफा के पैदाइश के वक्त मुस्तफा के घर को जो है चरागा करने के लिए आया था। और क्या करने आया? तो तारों ने कहा था ये अल्लाह के बंदे सुनो सुनो, बात ये है कि आम इंसान के यहाँ जब बच्चों की पैदाइश होती है तो बाप दादा नाना बच्चों की खुशी में मिठाइयाँ बांटा करता है। और रब ने कहा था ये आसमां के तारों सब जो है आमना के घर पे चले जाओ, क्योंकि आमना अपने लाल का सदका बांट रही है और जिसको मुस्तफा का सदका मिल जाए वो इस दुनिया में भी कामयाब और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होता होगा।
मेरे दोस्तों आसमान के जितने तारों आए थे ना, सब जो है मुस्तफा का सदका लेने के लिए आए थे। सुभान अल्लाह। यही तक के महदूद नहीं, और आगे मैं आपको बताऊं, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा लाल दुनिया में आया ना, तो दुनिया में इस तरीके से आया जैसे आम बच्चे जो आते हैं उस तरीके से नहीं, बल्कि मेरा नबी सजदे की हालत में दुनिया में तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह। आमना फरमाती है उस वक्त जो है मेरे लाल की ज़बां पे रब्बे हबली उम्मती की सदा थी। सुभान अल्लाह। और आमना खुद फरमाती है कि मेरे जिस्म से नूर निकला, और ऐसा नूर निकला कि मेरा घर भी मुनव्वर हो गया, और उस नूर की चमक में जो है मैं जो है शाम के महल्लात को मुलाजा फरमा लेती थी। सुभान अल्लाह। पता मेरे दोस्तों जरा गौर करो, मक्के से शाम कितना दूर है, उनके शाम के महल्लात को आमना फरमाती है कि मैं मक्के में अपने घर के अंदर बैठ के मुस्तफा के नूर की चमक में जो है, तभी तो अल्लामा जमील ने क्या है खुद लिखा है, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। आमना ने जिनकी नूर की रोशनी में देखा था मुल्क साथ, वाह वाह क्या नूर निकला, अस्सलातु वस्सलाम। पता मेरे दोस्तों ये आका की आमद की जलवा गरी है। और पता मेरे दोस्तों ये तक के महदूद नहीं, आमना फरमाती है कि जब मेरा लाल दुनिया में आ गया ना, आने के बाद जो है थोड़ी देर के बाद अब्दुल मुत्तलिब गए थे खाने काबा का तवाफ करने के लिए। अचानक अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं कि खाना काबा लर्जा हुआ है, हिल रहा है, कांप रहा है, और हजरत आमना के घर की जानिब अब्दुल मुत्तलिब के घर की जानिब वो काबा झुका हुआ है। अचानक किसी ने कह दिया ये अब्दुल मुत्तलिब आपके बेटे का बेटा जो है आपके घर में तशरीफ लाया है, आपके बेटे का लाल दुनिया में तशरीफ लाया है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने इतना सुना मैं खुर्रम था, उसके बाद जो है मैं घर के पास आया, और जैसे ही घर के पास आया ना, तो एक इंसान था जो फरिश्ता था, इंसान की शक्ल सूरत में, वो दरवाजे के पास खड़ा था। और आमना फरमाती है कि जब मेरा लाल दुनिया में आया ना, तो अचानक थोड़ी देर के बाद जो है मेरा लाल मेरी नजरों से ओझल हो गया, पर्दा हो गया। आमना फरमाती है कि मेरे लाल को जो है चंद जो फरिश्तों के बीच में जो है कुछ लोग मेरे लाल को मेरी गोद से लिया, और लेने के बाद जो है मेरा लाल मेरी नजरों से ओझल हो गया, पर्दा कर गया। थोड़ी देर के बाद मैंने अपने लाल को अपनी गोद में पाया, तो क्या देखा, मेरा लाल जो है रेशमी लिबास में, हरे रंग के लिबास में जो है मलबूस है, पहने हुआ है। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं दरवाजे पे गया तो किसी ने मुझे रोक दिया और कहा अब्दुल मुत्तलिब रुक जाओ। तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो अब्दुल मुत्तलिब से उन लोगों ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब ऐसा है कि मुस्तफा के रसूल मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह के हबीब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए हैं, और मुस्तफा के दीदार के लिए अल्लाह ताला ने 1 लाख फरिश्ते नहीं बल्कि तकरीबन 2,40,000 फरिश्तों को भेजा है जो मुस्तफा का दीदार करने के लिए आमना के घर में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। अभी फरिश्ते दीदार कर रहे हैं, आप जो है अंदर ना जाए, आप जो है अभी बाहर रहे, जब फरिश्ते जो है दीदार कर लेंगे उसके बाद आप अंदर जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आमना फरमाती है कि जब तक मेरा लाल मेरे शिकम में था तो कभी हजरत आदम जो है खाम में आकर बशारत देते थे, कभी जो है हजरत इब्राहिम जो है बशारत दिया करते थे और कहते थे ये आमना परेशान मत हो, ये आमना घबरा मत, बल्कि तेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा जब दुनिया में आएगा तो आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो बच्चा तमाम नबियों का सुल्तान बन के दुनिया में तशरीफ लाएगा। अल्लाह हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा लाल आ गया, आने के बाद किसी ने कहा था खाम में ही कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के 2 नाम है, बहुत सारे नाम है, लेकिन 2 नाम मशहूर है, आसमानी नाम अहमद, जमीनी नाम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पता मेरे दोस्तों यही तक के महदूद नहीं, आप मैं और आगे आपको बताता चलो। हजरत आमना के यहाँ मेरे आका की जलवागरी हो गई, लेकिन पता मेरे दोस्तों अरब का दस्तूर ये था कि जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती थी ना, जिसके यहाँ बच्चे जन्म लेते थे, और पता मेरे दोस्तों उस वक्त का माहौल ऐसा था कि लोग जो है औरतें जो है बाहर से दूसरे मुल्क से आया करती थी और बच्चे को ले जाती थी दूध पिलाने के लिए। लेकिन आमना फरमाती है कि जब मेरा लाल आया ना तो मैंने क्या देखा पता है, एक फरिश्ता जो है एक खाने काबा की छत पे झंडा लगाया, लेकिन पता मेरे दोस्तों ये झंडा जो है किसने लगवाया था? रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा जिब्राइल ऐसा है तुम चले जाओ जन्नतुल
फिरदौस में, और जन्नतुल फिरदौस सबसे बेहतर जन्नत है, सबसे आला जन्नत है, सबसे जो है आला दर्जे का जन्नत है। उस जन्नत में रब ने कहा था जिब्राइल चले जाओ जन्नत में और जन्नत से जो है 3 झंडे ले लो। जिब्राइल ने कहा था मेरे परवरदिगार उस झंडे को लेकर क्या करूं? तो रब ने कहा था जन्नती झंडा ले, और लेने के बाद एक जो है काबे के छत पे लगाओ, और दूसरा जो है मगरिब में, तीसरा जो है मशरिक में, ये यानी पूरा और पश्चिम में झंडे लगाओ, और एक जो है अब्दुल हज काबा के छत पे लगाओ। और झंडा लगाने लेने के बाद जिब्राइल आते ही और एक को जो है पूरब में झंडा लगाया, दूसरा पश्चिम में लगाया, तीसरा काबे की छत पे लगाया। और एक रिवायत में ये भी है कि एक झंडा जो है हजरत आमना के घर पे लगाया गया। लेकिन पता मेरे दोस्तों ये 3 झंडे लगाए हजरत जिब्राइल, लगाने के बाद फिर वापस लौटे रफी बारगाह में और हाथ जोड़ के कहते हैं परवरदिगार अगर मुझे जो है तुम अगर एक सवाल करने की इजाजत हो, मरहमत फरमाओ तो मैं तुझसे एक सवाल करूं। रब ने कहा था ए जिब्राइल तुम मुझसे सवाल करना चाहते हो? तो जिब्राइल ने कहा हाँ परवरदिगार अगर तुम इजाजत मुझे दो तो मैं जो है तुझसे मैं एक सवाल करूं। रब ने कहा था जिब्राइल पूछ क्या सवाल करना चाहते हो? जिब्राइल ने कहा था ये मेरे परवरदिगार आदम अलैहिस्सलाम को तूने भेजा था, जन्नती झंडा जो है नहीं लगवाया था, हजरत शीश को भेजा था, जन्नती झंडा नहीं लगवाया था, हजरत नूह को भेजा था, जन्नती झंडा नहीं लगवाया था, हजरत इब्राहिम को भेजा था, झंडा लगाने का हुक्म नहीं दिया था, हजरत मूसा को भेजा था, झंडा लगवाने का हुक्म नहीं दिया था, हजरत ईसा को भेजा था, झंडा लगवाने का हुक्म नहीं दिया था। ये मेरे परवरदिगार आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को तूने दुनिया में भेजा, लेकिन किसी नबी के पैदाइश के बाद तूने झंडा लगाने का हुक्म नहीं दिया था। लेकिन ये मेरे परवरदिगार आखिर ये कौन नबी है जिनको भेज रहा है तो झंडा लगाने का हुक्म दे रहा है, झंडा लगवा रहा है पश्चिम में, झंडा लगवा रहा है पूरब में, झंडा लगवा रहा है अपने घर काबा के ऊपर। तो रब ने कहा था ए जिब्राइल कान खोल कर सुन ले, आदम से लेकर ईसा तक मैंने तमाम नबी को भेजा, लेकिन जो अब मेरा नबी जा रहा है वो आदम का भी सरदार है, शीश का भी सरदार है, नूह का भी सरदार है। जाने वाला आम नबी नहीं है बल्कि तमाम नबियों का सुल्तान बन के जा रहा है, तमाम नबियों में आला नबी बन के जा रहा है। पता मेरे दोस्तों रब ने कहा था इस वजह से मैं झंडा लगवाता हूँ। और पता मेरे दोस्तों आज हम लोग भी हजरत जिब्राइल की सुन्नत अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। घर में